ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାରାଜକୁ। ଗୋରଖପୁର ଗୀତା ପ୍ରେସର ସେ ହତା ଭିତରେ ରହି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ମାସେ 2 ମାସ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହକୁ ସେ ହୃଦୟସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ସେ ଆସି ନିଜର ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ସେମାନେ ଏକଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କଥା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ରାଧା ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ପାଠକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଧା ଶବ୍ଦ ଭାଗବତରେ ନାହିଁ, କେବେ କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ, ଅନେକ ପ୍ରବଚକ ତାକୁ ହୁଏତ କହି ବସନ୍ତି ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ? ଆପଣ ଏଇ ଭିତରେ ମୋତେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ରସ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ବାବାଜୀଙ୍କର କାମ କି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ସୀମିତ କାହାରି ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଆସିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ନାମ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କାହିଁକି ଶୁକଦେବ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ରାଧା ସନ୍ତ ଜଣ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧା ନାମ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରକୁ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଏମିତି ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶିତ କରେନି। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁପ୍ତ ହିଁ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥାଏ ସେଠି ନାଁ ନିଆଯାଏନି। ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମନାମ ଗୁରୋର୍ନାମ ନାମାତି କୃପଣସ୍ୟ च ଶ୍ରେୟସ୍କାମୀ ନ ଗୃହ୍ଣୀୟାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାପତ୍ୟମ କଳତ୍ରୟ। କାହାର ନାମ ନ ଧରିବା କଥା ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସଦାବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁ କହିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରେୟକାମୀ ଉତ୍ତମ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନାଁକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବେ, ତଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟକ୍ଷୟ ହେବ। ଗୁରୁ ନାମ, ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଏମିତି ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ନେବେନି। ଯଦି କେଉଁଠି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଅନେକ ବିଶେଷଣ ସହିତ, ଆଦରର ସହିତ ନାଁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ କରିକି ଆଉ ବିଶେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏତିକି କହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଅତି କୃପଣର ନାଁ ନେବନି, ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅପତ୍ୟ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନର ନାଁ ଧରିବନି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପନାମ ରଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଧରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କାହାକୁ କହିବା, ସବୁ ବିପରୀତ। ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ନ ଧରିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଭୋଜନ ହଜମ ହେଉନି, ଆଗ ସେଇ ନାଁଟା ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଯଶୋଦାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଉପନାମ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଗୋଟିଏ ନାମ ରହେ ପ୍ରମୁଖ ନାମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପନାମ। ଉପନାମ ଧରିକି ଡାକନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ନାମ ଧରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ହେଇଥିଲେ ଶୁକଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ସେ ଯତ୍ର ତତ୍ର କେମିତି ନେବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରିୟ ହିଁ ଦେବାହା। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ନାମ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକଟ କଲେ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେବେନି। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆମେମାନେ କହୁନେ କି ପ୍ରଥମେ ଧର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନାଁ ନେଇଦେଲୁ, ବାରମ୍ବାର ନାଁଟାକୁ ନେଲେ ଶୋଭା ନାହିଁ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବେ ଶର୍ମାଜୀ ବା ମିଶ୍ରାଜୀ, ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଗୁରୁଦେବ ହେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କର, ସିଏ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରୁଦ୍ରୟାମଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଶ୍ରୀରାଧା ନାମ ମାତ୍ରେଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଷାଣ୍ମାସିକୀ ଭବେତ୍। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ, ତେବେ ତାଙ୍କର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମାଧିରେ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମାତ୍ର ସମୟ ଅଛି 7 ଦିନ।
जदि से राधा नाम स्पष्ट भाव उच्चारण करदे सुखदेव तांकर समाधि मग्न हो तो परीक्षित आत्मकल्याण केमती हम से दृष्टि से राधा नाम को स्पष्ट भाव में व्यक्त कले केते गुड़ी आपण को कथा कहले आज्ञा द्वितीय कथा श्री सुखदेव होउचंदी श्री राधाराणी खेलनार सुख मद्र रुद्रयामल ग्रंथ अच्छी क्रीड़ा सुखो श्री वृषभानुजाया वृषभानुनंदिनी श्री राधाराणी ये जो सुखंक ठार आम कथा शुणुचे सी हेले क्रीड़ा सुख एकांतर प्रत्येक भगवान लीला खेला सब ज्ञान अच्छी तेणु गुरुतुल्य होता नाम को सुखदेव प्रत्यक्ष भाव में उच्चारण कले किंतु गुप्त भाव में अनेक जगार भागवत उच्चारण कर कौ जगार गोटे जोड़े जगह मुझे कहूँ जितेबले रासलीला प्रसंग में भगवान अंतर्धान हो जाइछन्ति गोपी माने व्याकुल होचन्ति तो सेठी गोटे प्रसंग अच्छी कि राधाराणी की अन्य गोपी माने कहउछन्ति अनया राधितो नूनम अनया राधया नूनम राधित माने भगवान आम को छाड़ी श्रीकृष्ण राधाराणी की नहीं गले तार अर्थ ये बहुत पुण्यशालिनी ये भगवान आराधना करचन्ति अधिक तेणु अनया राधित से अनया शब्द रे राधा नामटी कह अनया राधित हाँ आउ जिते आप देखिए भ्रमर गीत रे उद्धव आसी ब्रज को आउ ब्रजरे श्री राधाराणी सहित वार्तालाप होती सेठी गोटे श्लोक अच्छी काचित मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायंतीम कृष्ण संगम माने से ब्रजगोपी मान भीतर काचित एक काचित्र अर्थ होची राजा अच्छा कम कृष्ण सुखम आचिनोति या सा काचित माने भगवानकर प्रेमात्मक भगवान श्रीकृष्णकर सुख को चयन करिकी जो जीए भक्तंक मेଳରେ ତାହାକୁ बंटन करती से होचंदी श्री राधा अच्छा तेणु काचित शब्द रे राधा शब्द ही व्याख्या करा जायछि आज्ञा किंतु स्पष्ट भावे राधा शब्द एथि प्रकट करना कि सी गुप्त रखी आ गुप्त रे ही प्रीतिटा बढ़े प्रीतिटा जिते हाटरे बाटरे हो बढ़िबनी तेज निश्चित कथा तेज निश्चित भाव में आमर दर्शक मैंने अपेक्षा कर रही जे आपण संपर्क में टिके अवगत हाँपाई आपण ओडिशा जन्म हेले गोरखपुर रे जाई गीता प्रेस रे दीर्घ 15 वर्ष काल अवस्थान कले वृंदावन गले एवं बर्तमान वृंदावन अवस्थान कर सारा भारत वर्ष बुलिकी भगवान कथा को प्रचार कर ये ओडिशा रे जन्म हे ये जो दीर्घ पथ आप अतिक्रम करछंती अनेक गुड़े पुस्तक ग्रंथर ओडिया अनुवाद करने सहित एते भक्त समाजर ओडिया जातिर एते मंगल साधन करछंती ये यात्रा पथ केमती थिला पूर्वाश्रम कोठी थिला एवं केमिति मनोवृत्ति आसिला केमती गले देख साधु को पूर्वाश्रम कथा पचारिया कथा ना अच्छा तेणु पूर्वाश्रम विषय रे आमे किसी कहवाई समर्थ नुह किंतु हाँ एति कहीपर कि आम जीवन गति केमती है वस्तुतः देखा गले कि मनुष्यर ये जीवनटा प्रथम जीवन नुहे अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म महितरे अनेक जन्मरु जो साधना आराधना भगवान आम मैंने करिआसीचे तार फलटा ये जन्म प्रकाशित हुए पिला दिनरु भगवान के प्रति बहुत रुचि थिला जोठी भगवान नाम संकीर्तन हुए जोठी कथा हुए सेठी मते भारी भल लगे उपस्थित हवा जदि बा से जो भावटा थिला सेटा आच्छादित होगी थिला गुप्त रूप रे थिला सेटा मु साधु हेबी बा भगवान भक्ति हम एमती स्वाभाविक कथा पिला दिने कौन क्या जना थाए किंतु आमर सेठी जन्मस्थान रे गोटे सुंदर उपवन थाए गोटे पहाड़ थाए सेठी पिला दिने आम जाइए ठाकुरंकर सुंदर गोटे शिला उपरे गोटे शिला स्थापन करके चुआ चंदन देकी ठाकुर बोली कहीकि से आराधना चलता पिला बेले जमी हवा कथा सेमती आराधना चलता किंतु विशेष जीवन रे जो परिवर्तन है ये श्रीमद् भगवत गीता रू है एपटे अध्ययन समापन कला परे समापन तो कह जाई परिबेनी ता मझिरु
भगवान कृपारू से जो मार्ग मिलला श्रीमद् भगवद गीतार जितेबाला अध्ययन है आमर परम श्रद्धेय स्वामीजी महाराज गुरु महाराज तांकर जो साधक संजीवनी टीका आपण मैंने देखुं देखु ये जो टीका आपण मैंने देखुं साधक संजीवनी टीका ये हिंदी रे आमे प्रथमे पढ़ी संपूर्ण टीका। अच्छा गुरु महाराज जी पाखक जीवा पूर्व आमर गीता संपूर्ण कंठस्थ हो जाता। अच्छा 700 श्लोक गीता कंठस्थ हो जाता। यही टीका जिते आम हिंदी रे पढ़िलु जीवन गोटे अलौकिक परिवर्तन आसला भाई आसला। अच्छा तो एबे आमे गुरु महाराज जी की अनुभव करिनु जानिनु। गुरु महाराज जी प्रथम दर्शन है ऋषिकेश रे। अच्छा हाँ आम जाऊँ कौन सी कार्य उत्तरकाशी ऋषिकेश प्रथम गुरु महाराज जी दर्शन है सी आमको ये साधक संजीवनी टीकाटी पुणी देले पढ़ बोल। अच्छा आम निवेदन कलु कि महाराज जी आम तो पढ़ुचु आउ से समय आम कहलु कि महाराज जी आम पाखे पैसा ना। महाराज जी कहले अन्य माने भी जो सेवक मान थे से कहले पैसा नहीं तुमको महाराज जी दौरान टीकाटी पढ़। महाराज जी 2टी श्लोक मत पचारि से समय सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मु उच्च स्वर रे वेद पढ़वार अभ्यास थिला गाइबार भी अभ्यास थिला तेणु उच्च स्वर रे गाई महाराज बड़ खुशी होते। प्रथम दर्शन जिते बड़े गुरु महाराज जी है लगिला कि जीवन में किसी गोटे अलौकिक लाभ है जी मात्रा साधना चलता महाराज श्री दर्शन है से साधना आहरी बहुगुणित हो गला। तापर आमको अनुभव लगिला कि संसार आमर आ किसी काम ना मत लगुच ये ग्रंथर संस्करण 2,48,500 है ओडिया भाषा केवल ओडिया भाषा रे एते बड़ा ग्रंथ 2,48,500 छपी सारे। अन्य भाषा रे ये अनेक भाषा रे अनुवादित हो जाइए। अन्य भाषा रे जिते आम देखिलु ग्रंथ अनुवादित हो जाइए आम कह आम उत्कल पछुआ रहीगला। तेणु जीवन बहुत समय एथिरे उपयोग करके लगिलु ये कामटी हो जिते बड़े यही कार्यटी हो गला। आपण देखो आउ गोटे ग्रंथ ये होचंदी श्री अति बड़ी श्री जगन्नाथ दासंकर भागवत। ये होचंदी श्री भागवत। ये जन जन आदृत हो जाइछंदी। यार संपादना काम केमती संपन्न है ये साधक संजीवनी ग्रंथ है परे थरे गीता प्रेस गोरखपुर आम मैंने संपादन कार्य थाऊ गुरु महाराज आसी से कार्य में। अच्छा मनरे भावना जागृत है आम उत्कल अन्य सब जगार भागवत छपुचंदी किंतु भागवतर गरिमा जेतिकी सेतिकी अनुसार जन जन से जिनसटा पहुँची पारुनी। का घरे जदि प्रथम स्कंद अच्छी द्वितीय स्कंद नहीं 4 स्कंद थिले कौन से स्कंद नहीं एवं अशुद्ध अनेक प्रकाशन रे भी लक्ष्य करा जायछि जे भागवत हो बा भगवत गीता हो जदि आम लक्ष्य करवा से समयर जो प्रकाशन रही पुराणा तालपत्र पुथी जहाँ आसीला से बही बाहर आउ जेते बही सब अशुद्ध थिला। देखो एथिरे कौन कि सेमानंकर परिस्थिति परिवेश छपेवार प्रणाली परिश्रम से माने चेष्टा करछन्ती से माने आमर पूज्य आज्ञा अशुद्धि तो रही जाए एते बड़ बड़ काम किंतु चेष्टा करागला कि शुद्ध संस्करण गोटे आम उत्कल को आसवा दरकार। तो गुरु महाराज आसी आमर गीता प्रेस को आमे जगन्नाथ दासंकर जीवनी विषय कहलु। अच्छा केमिति भागवत पुस्तक तो प्रथम भाग जीवनी लिखाई जिते कहलु महाराज जी नेत्रु अश्रु विगलित है कहले बाबा एते संत मैंने आमर हो जाइछन्ती एते अद्भुत ग्रंथ अच्छी तमें मैंने चेष्टा कर। महाराज जी कहले कि मु तो तुम भाषा जानी कि तमें मैंने चेष्टा कले ये कार्य हो तेणु भगवान को स्मरण करके चेष्टा करागला काम किंतु कार्य खूब आनंद है संपूर्ण कलेबल प्रकाशित पाइला सी गोटे आनंदर कथा। वस्तुतः देखा गले आमे बा कौन करें प्रवचन जदि बा किसी करिवार शक्ति भगवान देइछन्ति तेबे गुरु महाराज जी कृपा भगवान कृपा मुख होता है यही मुख किंतु शक्ति तो तांकर तेणु भगवान जाद्वारा जो कार्य करने को चाहते से कार्य कर दियंती। यही ग्रंथ संपादन है आउ गोटे ग्रंथ आपन देखुछन्ति ये श्री भक्त चरितामृत। आज्ञा
गुरु महाराज से समय कहीदे कि एमिति जो भक्त माने तुमर उत्कल अच्छा अथवा उत्कलर बाहर जो भक्त माने अच्छा जहाँ लोक मैंने अनुप्राणित हो पारे चरित्र लिख तो एमती 3 खंड चरित्र होता एवं से ग्रंथ गीता प्रेस प्रकाशित कर देइछिनि भक्त चरितामृत नाम अच्छा 3 खंड गोटे खंड हो जाए बड़ा सुंदर ग्रंथ आम मानक तो आपण मानक एक कथा कहवा कथा समाज को जो साधु संत माने ऋषि महर्षि माने आमर ग्रंथ प्रणयन कर माने जीवन बहुत समय अर्पण कर काली आमे चर्चा करूँ जमीती किए जदि ऋण मुक्त होगा चाहे आमर 3 ऋण देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण तो संतान परंपरा हेले पितृ ऋण मुक्त हो देव आराधना हेले देव ऋण मुक्ति हो ये गोटे आम उपर ऋषि ऋण रही जाऊँ अच्छा साधु संत मैंने आम उपर कृपा करने ये ग्रंथ सब प्रणयन कले आमर परम कल्याण आमे ताकू समाज रे विस्तार करवा कथा आगे ये कथा केवल जनकर कर्तव्य नुह आम सनातन संस्कृति रे प्रत्येक व्यक्तिर कर्तव्य से ता अनुसार समाज रे ए ग्रंथ को प्रकाशित कर केमिति करि परिबो धर कौन सी विवाहर हो कौन सी व्रतघर हो किसी क्या दबार अच्छी आपण ग्रंथ दिंतु इहलोक परलोक दुई समय उन्नति हम श्रीमद् भगवद गीता आपण दिंतु समाज रे सद विचार प्रतिष्ठित हो असद कथा को प्रसारित करने एते एडवर्टाइजमेंट करा कि नहीं करा जाउछि आमे सनातन संस्कृति रे एते माने भाभी पारुने कि जो आमर ऋषि महर्षि मैंने आमको देइछन्ति ताको आमे समाज रे प्रचार कर परिबानी जेंति आपण माने भल काम करछन्ति एई माध्यम रे साधु संतंकर वाणी की समाज रे प्रकाशित करछन्ति जेंति आपणक स्तर रे आपण कले मो स्तर रे मु कली प्रत्येक सनातनी भाई माने आम सनातन एते अमूल्य धरोहर ताको समाज को देवा दरकार निहाती भाବରେ तेबे जो ओडिया भागवतर कथा आपण कहूतिले भागवत महापुराण ओडिया भागवतर पुनः प्रसारण पाई सरकारी व्यवस्था रे किछि अनुदान दिया जाउछि विभिन्न गाँ गहली को समय थिला जेतेबेले प्रत्येक गाँ रे भागवत टुंगी थिला एबे किंतु सरकारी व्यवस्था को अना जाई भागवत टुंगी प्रस्ताव दिया जाउछि सेमान प्रतिष्ठा करंतु एवं किछि अनुदान दिया जाउछि भागवतर प्रचार प्रसार पाई विशेष करी ओडिया भागवतर प्रचार प्रसार पाई यह यथेष्ट बोली आपण भाबुचंती की कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता जोबा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन शतुबाल बुद्धि रजांसी भूमे गणयेत कथंचित कालेन नैवा खेलशक्ति धामन तार अर्थ होची जदि किए भूमिर धूलिकणा को गणिबा को चाहिबो गणि पारिबो कि केबे नै आउ सेमिति जदि किए भगवानकर गुणावली की विस्तार करने को चाहिए तेज संपूर्ण करि कि तेबे आमे एमती केमती भाविया कि सरकार जी कर यथेष्ट बोलिकी भगवानकर यही कथा जिते विस्तार हम समाज सेते सुखी हम आम जो कहे आगुरी समाज सुखी थिला केवल धन द्वारा नुह ये दिव्य चेतना द्वारा ये ज्ञान द्वारा से सुखी थिला परस्पर भितर स्नेह सौहार्द रोला तेणु सरकार उत्तम कार्य कर सरकार को अशेष अशेष साधुवाद भाविले तो विपरीत सरकार तो से भावुना कि यहीटा गोटे आवश्यक बोली से भावुना सनातन विरोधी सरकार आसिले किंतु एमाने भाविले यहाँ गोटे आदरणीय कथा साधुवादर पात्र से माने किंतु केवल सरकार लगिले सबकिछ करें सरकार लगिले कौन करें आपण भावतु गोटे जगह भागवत टुंगी खोल दे पारे लोक जदि भागवत टुंगी कि न आसबे से टुंगीर कौन हम किसी दिन पर घर भांगी ना से मूषा डेइबे तो जनजागरण करने को हेले आम भली आपण भली भक्त माने ये चेतना को जागृत करने पछरे निज निजर सहयोग दवा कथा सरकार तांक सहयोग देले आमे आमर समय देले आमे आमर सहयोग देले सबू सहयोग मिसिकी गोटे सुस्थ समाज आम निर्माण हो पार कहीं जड़े ये कार्य को संपादन करें भगवान श्रीकृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठेले कौन सी गोप बालक मैंने गिरी गोवर्धन को उठे पारे उठेले भगवान तांक शक्ति अच्छी किंतु गोप बालक मैंने निज निजर बाड़ी लगे कि ना कहीं भाव
कि कृष्ण को आमे टिके सहायता करूँ ये आमर सखा समर्थनर भाव समर्थनर भाव 7 दिन है धरी रखी मनरे बिल्कुल अभिमान नहीं किंतु सहयोग समर्थन आज समाज रे यही गोटिक तो असुविधा देखा जाउछि किए कौन कार्य करुच्ची तो 10 जन ता पाद टाणिमा को अच्छा तो विरोधी माने जति विरोध करूना आम सनातनी माने परस्पर को ना सेमिति हवा कथा न सबु संप्रदाय सबु जाति समस्ते आमे गोटे दृष्टि एका ना तेणु से कौन प्रभेद ना तेबे हूँ तो ये आलोचनार शेष प्रश्न ओडिया परिवार भितरे भागवतर गोटे दिव्य प्रचलन थिला प्रत्येक ओडिया परिवार रे गोटे आंदोलन परी प्रतिदिन भागवत पाठ करा जाउथला गाँ गाँ रे तो पाठ करा जाउथला परिवार भितर ही पाठ करा जाउथला ये गोटे प्रश्न छोट हेले भी यार तत्व बहुत बड़ बोली मु चिंता करे जे भागवत पाठर सतरे कौन किछि प्रभाव रही परिवार भितर नित्य पाठ करा जिबा आवश्यक शास्त्रीय विधारू मु आपन को देखी बोले से तो तार वर्णन करी हबनी भागवत पाठर महत्व केते जो गृह रे भागवत पाठ होती से तांकर पितृपुरुष माने से गृह रे पिंड पानी पाते जोठी भागवतर गोटे अक्षर गोटे श्लोक उच्चारण होती से जगार भगवान सर्वदा निवास करते भगवान श्रीमन्नारायण पितामह ब्रह्मा को ए विषय विशद भाव कहते गोटे सत्य घटना आपन को कहूँ ऋषिकेश रे गंगा कूल रे जड़े भक्त आमको डाकी भागवत कहवाई सी तांको जीवन रो गोटे घटना शुणेले तांको मन रे केमिति भागवत करेवा बोली ये भावना जागृत है सी कहते जड़े व्यक्ति तीर्थयात्रा क्रम सी जाइथिले बद्रीनाथ अच्छा बद्रीनाथ रे साधु संतर संग सत्संग इत्यादि प्राप्त करथांदी एपटू समाचार मिलला तांकर जे दादा हेबे दादा माने हमर बुढ़ा बापा कहबे बुढ़ा बापा हेबे आज्ञा सी चली गले दादा माने बापांको बड़ हाँ बापांकर बापा बापांकर बापा बुढ़ा बापा बुढ़ा जान बापा बुढ़ा बापा चली गले बहुत स्नेह करथिले तांको तो से सज्जन मन रे भावना रहीगला कि आहा जीवा समय रे मु बुढ़ा बाबा साथ टे मिसी पारे अच्छा केमिति कौन करी साथ मिसी था मोर भाव अधूरा रहीगला तो जड़े सिद्ध संत तांको भेट हेले बद्रीनाथ पाखापाखि हिमालय रे सी कहले जदि कौन सी शुद्ध पवित्र साधु ब्राह्मण माने जे भागवतर मर्मज्ञ आ निष्काम भाव रे तम बापा उद्देश्य रे गोटी भागवत कथा वाचन करते पाठ कर दियंती तेबे तुमको बापांकर दर्शन मिल पारिबो आ तांको साथे संभाषण सौभाग्य मिल पारिबो साधु ठार जो एक शुणिले पुणी से गृह को प्रत्यावर्तन कले समस्त को पचारे जिते सब कथा करती समस्त को पचारे कहले महाराज मु आपण द्वारा गोटे भागवत आयोजन करने को चाहूँगी कथा संत कहले ठीक अच्छे आम करदे से कहले आज्ञा गोटे सर्त रे मो बापा सहित मो बुढ़ा बापा सहित आपन को कथा करने को पड़ो समस्त कहले कि अरे से काम केमती आम हाथ कथा तो नुह कहले ना आज्ञा मुझे तो भागवत करोची आ कहीं राजी हेले मत भी आप कहले मुझे कौन आप बुढ़ा बाबा सहित कथा करदे पारि असंभव कथा मो तो समस्ते मना करदे समस्ते कहले आम निष्काम भाव में करदे पारू कि तुम अर्थ आमको दरकार नहीं शुद्ध पवित्रतार सहित पाठ करदे पारू किंतु यही शर्त आम राजी नुह कि तुम बुढ़ा बाबा सहित आम तुम कथा करदेबू यही शर्त राजी नुह कहीं राजी हेले दीर्घ दिन पर जड़े शुद्ध पवित्र ब्राह्मण से कहले मु तुम बापा साथ कथा करदेवी भागवतर आयोजन कर तांको घरे भागवतर आयोजन है भागवत पाठ है पाठक्रम एमती 4 दिन बीतीगला चतुर्थ दिन भगवान जन्मोत्सव पालन हुए लोकटी व्यस्त हो चल था 4 दिन है किसी है एमती व्यस्त हो चल था पंचम दिन आसला जी कथा कहता पाठ करूँ पचार था महाराज कहीं तो बुढ़ा बापा आमर आसिले से कहले अरे धैर्य धर कौन सी मोर पखाड़ भात होती कौन मुझे आनी खुआदेवी पंचम दिन द्विपहर समय कथार गोटे पाठ होगी
ପୂର୍ବାହ୍ନ ପାଠ ହେଇକି ବିଶ୍ରାମ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେଠି କିଏ ଜଣେ ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବାପା ଯେମିତି ଚାଲବୁଲ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଟୁଆଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ଆସିବାର କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, କେହି ଦେଖାଗଲେନି। ତାଙ୍କର ଆବେଶ ହେଲା ସେଇ ବୋହୂ ଦିହରେ, ତାଙ୍କ ଘରର ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଆବେଶ ହେଲା। ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆମର ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରରେ ରହନ୍ତିନି, କହିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନା, ବାଣୀରୁ କେମିତି ବାହାରିବ। ତ ସେ ବୋହୂ ଦିହରେ ଆସିକି ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଭାଗବତ ପାଠଟି ମୋ ପାଇଁ କରେଇଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ପାଠର ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରହ। ତୁ ମୋର ବାସ୍ତବିକ ନାତି ହେବାର, ନାତି କହିବା ନା କ'ଣ, ନାତି ହେବାର ତୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁରା ନିର୍ବାହ କଲୁ, ତୋ ମନରେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏ କଥା। ସେ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲି, ତମ ସାଥିରେ ଭେଟିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ତୁମେ ପରିବାର ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ରହ। ଏଇ ଭାଗବତ ପାଠ ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଧାମକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହିକି ସିଏ ପୁଣି ଯେମିତି ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଆଉ ସେ ପୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ କଥାଟି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ପରିବାର ଆସାମରେ ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା କି ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଦାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ କଥା ଆୟୋଜନ ହେଲା। ଭାରି ଦିବ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ତ ଅଛି, ସାଂସାରିକ ସିଦ୍ଧି ବି ହୁଏ, ଏକଥା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରାଣର କଥା ସହିତ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ, ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।